مدینہ پہنچتے ہی ہم مسجد نبوی کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے، لیکن اس ویڈیو کی خاطر میں آپ کو پہلے مسجد نبوی سے ملحق اس میوزیم کی سیر کراؤں گا تاکہ آپ مدینہ منورہ کی تاریخ سے کچھ آگاہ ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کو سمجھنے کے لیے یہ کرنا ضروری ہے۔ مدینہ صوبہ حجاز کا ایک اہم شہر اور سعودی عرب کے علاقے المدینہ کا صدر مقام ہے۔ عربی زبان کے لفظ مدینہ کے معنی ہے شہر۔ اس شہر کا اصل نام یثرب تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے یہاں آئے تو اس شہر کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، جس کے معنی ہے نبی کا شہر۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی 13ویں آیت میں مدینہ کے لیے یثرب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس شہر میں واقع مسجد نبوی دنیا اسلام کی اہم ترین مسجد ہے۔ اس کے قریب ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ ہے۔ مدینہ مکہ مکرمہ کے بعد اسلامی دنیا کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ شہر مکہ سے 340 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اور بحیرہ احمر کے ساحل سے 190 کلومیٹر دور ہے۔ یہ حجاز کی سرزمین کا سب سے زرخیز علاقہ ہے۔ آج کل مدینہ کی آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے۔ مکہ مکرمہ کی طرح مدینہ میں بھی غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مدینہ میں 3 بڑے یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نادر آباد تھے۔ 4ویں صدی عیسوی میں یمن سے 2 بڑے قبائل بنو اوس اور بنو خزرج یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ شروع میں یہ دونوں قبائل یہودی حکمرانوں کے تابع رہے، لیکن بعد میں اپنے معاملات آزادانہ طے کرنے لگے۔ 5ویں صدی کے آخری سالوں میں عربوں نے یہودیوں سے اقتدار چھین لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنو اوس اور بنو خزرج بھی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اور 120 سال تک چھوٹی بڑی جنگیں لڑتے رہے۔ 7ویں صدی میں مدینہ کی سیاسی صورتحال کچھ اس طرح تھی کہ بنو نادر اور بنو قریظہ نے بنو اوس کے ساتھ اتحاد کر لیا اور بنو قینقاع بنو خزرج کے حلیف بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے چند سال پہلے ان قبائل کے درمیان ایک بدترین خون ریز لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائی جو بعد میں ان قبائل کی آخری لڑائی ثابت ہوئی، شدید خون ریزی کے باوجود ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی اور جھگڑے کی بنا باقی ہی رہ گئی۔ جھگڑا مٹانے کے لیے مدینہ کے کچھ عمائدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنانے کا ارادہ کیا اور اس غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ یہ ملاقات منی اور مکہ کے درمیان واقع ایک مقام العقبہ میں ہوئی۔ ان سرکردہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جھگڑے میں ثالث بننے کی درخواست کی اور اس بات کی ضمانت دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آ جائیں تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کو مکمل آزادی اور عزت حاصل ہوگی۔ سن 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 70 ساتھی ایک ایک دو دو کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ یہ ہجرت شہر کی سیاسی اور سماجی زندگی میں مکمل انقلاب کا پیش خیمہ بنی۔ بنو اوس اور بنو خزرج کی طویل دشمنی کا خاتمہ ہو گیا۔ ان قبائل کی بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا اور تھوڑی تعداد میں یہودی بھی مسلمان ہو گئے۔ گرد و نواح کے مشرک قبائل مکہ سے آنے والے مہاجرین، انصار اور یہودی قبائل کے درمیان ایک باقاعدہ معاہدہ طے پایا جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدے کی روح سے چاروں گروہ آپس میں حلیف تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے متفقہ قائد۔ اب آئیے مسجد نبوی کی طرف۔ موجودہ مسجد اصل مسجد نبوی سے 100 گنا بڑی ہے، یعنی اس وقت مسجد نبوی کم و بیش سارے قدیم شہر پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہ مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ آمد کے فوراً بعد تعمیر کرائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار اس مقام پر پہنچے اور اس مقام پر مسجد کی تعمیر کا ارادہ کر لیا۔ یہ زمین 2 یتیم بھائیوں کی ملکیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ زمین خرید لی اور مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ مسجد کی تعمیر میں 7 ماہ کا عرصہ لگا۔ مسجد 31 میٹر لمبی اور 36 میٹر چوڑی تھی۔ اس کے ستون کھجور کے تنوں سے قائم کیے گئے تھے اور چھت کھجور کے خشک پتوں سے ڈالی گئی تھی۔ مسجد کی دیواریں صرف 4 میٹر بلند تھیں۔ مسجد کے داخلی دروازے 3 تھے۔ مشرق میں باب النساء، مغرب میں باب الجبریل اور جنوب میں باب الرحمان۔ جنگ خیبر کے بعد مسجد میں کچھ توسیع کر دی گئی۔ مسجد کی حدود میں ہر جانب 47 میٹر کا اضافہ کیا گیا۔ مغربی دیوار کے ساتھ ستونوں کی 3 نئی قطاریں بنائی گئیں اور یہ جگہ نماز کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ اس وقت تک مسجد کا کوئی مینار نہ تھا۔ 4 میناروں میں سے پہلا مینار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر کیا گیا، جس کی اونچائی 8 میٹر تھی۔ سن 1307 میں محمد ابن کلاون نے باب السلام کے نام سے ایک اور مینار کا اضافہ کیا، جس کی تزئین محمد چہارم نے کرائی۔ 1994 کا آرائش نو کا منصوبہ مکمل ہونے پر میناروں کی تعداد 10 ہو چکی تھی،
जो कि 104 मीटर ऊंचे थे। मीनारों के निचले, दरमियानी और बालाई हिस्से बिलतरतीब हश्त पहलू, चौकोर और सिलेंडर नुमा हैं। मस्जिद नबवी इस्लामी तारीख की तीसरी मस्जिद है। इसका खूबसूरत सब्ज गुंबद बहुत दिलकश है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के 650 साल बाद तक आपके मकबरे पर कोई गुंबद ना था। यहाँ पहला गुंबद एक ममलूक हुक्मरान ने 1289 में बनवाया, जो लकड़ी से बनाया गया था। जो सब्ज गुंबद हम देख रहे हैं, ये दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरे का बैरूनी गुंबद है। मौजूदा गुंबद का इजाफा तुर्क सुल्तान मोहम्मद दोम ने सन 1818 में कराया और सन 1837 में इस पर सब्ज रंग किया गया। ये चबूतरा, जो बाबुल जिब्रील से दाखिल होने वालों के सीधे हाथ पर है, अस्हाब सुफा का चबूतरा कहलाता है। ये वो लोग थे जो मक्का से हिजरत करके आए थे और इनका कोई घर बार ना था। ये लोग वसाइल की कमी के बायस घर गृहस्थी का बार ना उठा सकते थे और ये जगह ही उनका ठिकाना थी। इन असहाब में हजरत अबू हुरैरा, हजरत अबू जर गफ्फारी, हजरत सलमान फारसी, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद और हजरत बिलाल हबशी शामिल थे। ये देखिए, ये जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दो साथियों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकबरा है। यहाँ एक और कब्र की जगह बाकी है। कुछ मुसलमानों का अकीदा है कि यह जगह हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की कब्र के लिए अल्लाह के हुक्म से मखसूस है। उनका ज़हूर क़यामत के करीबी ज़माने में होगा और अपना काम मुकम्मल करके उनकी वफात हो जाएगी और यहाँ उनकी तदफीन होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल नबी पाक के सिर्फ 3 माह बाद हुआ था, लेकिन आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन आपके वालिद के पहलू में ना हो सकी। ना ही हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन अपने नाना के करीब हो सकी। रोज़ा रसूल की मशरिकी सिमत का दरवाजा ऐन उसी जगह पर है जहां हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाजा था। ये वो इलाका है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत नौफल बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर वाक़े थे। ये तमाम सुतून तारीखी अहमियत के हामिल हैं। ये सुतून इस्तिवाना हन्नाना कहलाता है। ये उस जगह पर वाक़े है जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा फरमाया करते थे। ये जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर के पीछे दाएं जानिब वाक़े है। इस जगह पर किसी जमाने में खजूर का एक दरख्त हुआ करता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तने से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। बाद में मिंबर बन गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर बैठकर खुतबा देने लगे। यह सतून इस्तिवाना वफूद कहलाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरूनी वफूद से इसी जगह मुलाकात किया करते थे। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातचीत करते और उन्हें इस्लामी तालीमात से आगाह करते। ये उस्तवान सरीर है। सरीर के माने हैं सोने की जगह। बताया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतिकाफ के दौरान इस जगह सोया करते थे और इस खातिर यहाँ लकड़ी का एक तख्त लगाया गया था। ये उस्तवाना तहज्जुद है। किताबों की अलमारी के पीछे एक जाय नमाज बिछी रहती थी। लोगों के चले जाने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तहज्जुद की नमाज अदा किया करते थे। ये इस्तिवाना जिब्राइल है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती कमरे में बनाया गया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आमतौर पर यहीं अल्लाह जल्ला शानहू का पैगाम लेकर हाजिर हुआ करते थे। अब ये देखा नहीं जा सकता। इस तरफ उस्तवाना हर्स है। हर्स के माने है निगरानी। उस्तवाना हर्स उस जगह वाक़े है जहां बैठकर हजरत अली करमल्लाहु वजहू मस्जिद में आने वालों की सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दिया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही मुनाफिकों ने इस्लाम को मिटाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ये लोग एक बार फिर सरगर्म हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले खाना और सच्चे साथियों ने हर तरह की कुर्बानियां देकर उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया। इस सिलसिले का सबसे बड़ा तसादुम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मलून यजीद बिन माविया के दरमियान हुआ। ये हक व बातिल का सबसे बड़ा मार्का था जो करबला के मैदान में पेश आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना शहीद कर दिए गए। खवातीन और बच्चों को कैदी बना लिया गया। उन्हें नंगे पांव और नंगे सर कूफा और दमिश्क के बाजारों में फिराया गया। लेकिन क्या यह हैरत का मकाम नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे खानदान को शहीद कर डालने के बावजूद यजीद उन्हें और उनके अजीम मकसद को खत्म ना कर सका। आप अलैहिस्सलाम और आपकी जिद्दोजहद ना सिर्फ तमाम मुसलमानों के दिलों में जिंदा है, बल्कि दुनिया की तारीख में भी ये जुल्म जबर के खिलाफ जिद्दोजहद की अलामत है।
امام حسین علیہ السلام کے سفاکانہ قتل کے بعد مدینہ کے کچھ لوگوں نے یزید کے گورنر عثمان ابن محمد اور مروان ابن حکم کو مشورہ دیا کہ مدینہ کا محاصرہ کر لیں، جس پر یزید نے مسلم بن عقبہ کی کمان میں 10,000 فوج کا لشکر مدینہ پر قبضہ کرنے کے لیے بھیج دیا اور اسے یہ اجازت بھی دے دی کہ شہر فتح کرنے کے بعد وہاں کے لوگوں سے جو چاہے سلوک کرے۔ یہ لڑائی مدینہ سے باہر ہررا کے مقام پر ہوئی، جس میں مدینہ والوں کو شکست ہوئی۔ ذرا اس جگہ کو دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر تک کا علاقہ ریاض الجنہ یعنی جنت کا باغ کہلاتا ہے۔ اس جگہ کے فرش پر سبز قالین بچھا کر اس کی شناخت نمایاں کر دی گئی ہے، جبکہ مسجد کا باقی تمام فرش سرخ قالین سے ڈھکا ہوا ہے۔ مسلم بن عقبہ گھوڑے کی پشت پر سوار اس جگہ کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر اس شخص پر جہنم حرام ہوگی جس نے ریاض الجنہ میں ایک قدم بھی رکھا۔ میں یہاں کھڑا ہوں اور جہنم مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ جو شخص بھی یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرے اسے قتل کر دیا جائے، اس کا گھر لوٹ لیا جائے اور اس کے گھر کی خواتین کی بے حرمتی کی جائے۔ یہ ظلم 3 دن تک جاری رہا اور اس کے نتیجے میں 700 خواتین حاملہ ہو گئیں۔ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو ہررا کی اولاد کا نام دیا گیا۔ ایک بات اور وہ یہ کہ اس لشکر میں حجاج بن یوسف بھی شامل تھا، لیکن اس وقت وہ صرف ایک کم سن سپاہی ہی تھا۔ مسجد نبوی کے دروازہ البقیع کے بالکل سامنے ایک وسیع قبرستان ہے۔ یہ جنت البقیع ہے۔ اس لفظ کے معنی ہے جنت کا شجردار باغ۔ سن 1790 میں حجاز کا علاقہ ترکی کی عثمانیہ سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ اسی سال شاہ سعود نے اس علاقے پر قبضہ کیا اور تاریخی اسلامی ورثے کو تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پر عثمان ترک حکمران سلطان محمد دوم نے ابراہیم پاشا کی کمان میں 1818 میں ایک فوج نجد فتح کرنے کو بھیجی۔ ترک جرنیل نے السعود کو شکست دی اور یہ مقبرے دوبارہ تعمیر کرائے۔ انگریز براہ راست حجاز کی سرزمین پر حملہ کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی روایتی عیاری سے کام لیا اور اس مقصد کے لیے 2 مقامی عرب قبائل السعود اور شریف حسین سے مدد حاصل کی۔ السعود کا تعلق نجد سے تھا اور یہ قبیلہ 100-200 سال سے اس علاقے میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ سن 1880 میں انگریزوں کی مدد سے شاہ سعود نے نجد پر قبضہ کر لیا اور یہاں کا حکمران بن گیا۔ دوسری عالمی جنگ میں جب انگریزوں نے سلطنت عثمانیہ کو شکست دی تو حجاز کا علاقہ سعودیوں کے حوالے کر دیا۔ سعودی یہ نظریہ رکھتے تھے کہ ان کے عقائد سے ہٹ کر سوچنے اور چلنے والے لوگ توحید کے منکر ہیں۔ ابتدا میں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کو کافر قرار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے سے اس ملک کا نام حجاز تھا۔ سعودیوں نے اس کا نام سعودی عرب رکھ دیا اور مقدس مقبروں کی تباہی کا کام شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ سلیمان بن بلحد مدینہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے مسلمان علماء کو اس بات پر قائل کرے کہ وہ کسی بھی استدلال کی روح سے جنت البقیع کو تباہ کرنے کا فتویٰ دے دیں۔ ایک دلیل یہ تھی کہ مزاروں نے قبرستان کی بہت سی جگہ گھیر رکھی ہے اور اس ناجائز قبضے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اپنے مردے دفن کرنے کے لیے جگہ کی تنگی کا سامنا رہتا ہے۔ اپنے حق سے محروم لوگوں کو انصاف کی فراہمی کے لیے مزاروں کو مسمار کرنا ضروری ہے۔ صرف اسی استدلال کی بنا پر فتویٰ طلب کیا گیا۔ کچھ علماء نے اختلاف کا اظہار کیا جس پر انہیں دھمکی دی گئی کہ اگر وہ خاموش نہ ہوئے تو انہیں کافر قرار دے کر قتل کر دیا جائے گا۔ آخرکار فتویٰ جاری ہو گیا۔ فتویٰ یہ تھا، متفقہ طور پر قبروں کے اوپر کسی بھی طرح کی عمارتیں بنانا ممنوع قرار دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان کی روشنی میں کیا جا رہا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا کہ جب بھی تم کوئی تصویر دیکھو تو اسے پھاڑ ڈالو اور جب بھی تم کوئی قبر زمین سے اونچی دیکھو تو اسے زمین کے ساتھ برابر کر دو۔ فتویٰ جاری ہوتے ہی ساری اسلامی دنیا میں ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے نمائندہ علماء نے کھلے لفظوں میں فتوے کی مخالفت کی۔ ان علماء میں ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر نہایت نمایاں تھے۔ سعودی حکومت نے کسی احتجاج یا مخالفت کی پرواہ نہ کی اور 21 اپریل سن 1925 کو سعودی حکمران شاہ سعود کے حکم سے تمام مقبرے مسمار کر دیے گئے۔ جن سعودی مسلمانوں نے اس کارروائی کی مخالفت کی انہیں کافر قرار دے کر قتل کر دیا گیا۔ سلامت رہ جانے والا واحد مقبرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ سعودی حکمرانوں نے اس بات کا خوب پرچار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر مقبرے کی عمارت آپ کی تعلیمات کے منافی ہیں
और मस्जिद के अंदर कब्र बनाना भी एक बड़ा गुनाह है। लेकिन शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के खौफ और मुजम्मत के बाइस वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे को मिस्मार करने से बाज रहे। पहली बात तो यह है कि यह फतवा तमाम मुस्लिम उम्मा ने मुतफिका तौर पर नहीं दिया था। चंद मखसूस उलमा ने हुकूमती दबाव पर यह फतवा दिया था। दूसरे ये कि माजी में हर दौर में कब्रों पर मकबरे तामीर करने का रिवाज रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की कब्रों पर भी रोजे तामीर किए गए थे। तीसरी अहम बात यह कि सुन्नी उलमा के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मंसूब बयान के मुतालिक यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये किस हद तक सच्चाई पर मबनी है। वो इस बयान को मशकूक करार देते हुए इस पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लगता ऐसा है कि जैसे ये बयान हुक्मरानों की हिदायत पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक तराशा गया है। आज भी सुन्नी उलमा जमीन से 6 इंच ऊंची कब्र बनाने को ही मुस्तहब समझते हैं। ये मकबरे जो मिस्मार कर दिए गए जियारत के लिए आने वालों को दुआ और तिलावत की जगह फराहम करते थे और इन्हें मौसमी हालात से भी बचाते थे। और अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को सच मान भी लिया जाए तो भी कई सवाल सर उठाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में मुसलमान हुकूमत इसराइल और मिस्र तक फैली हुई थी और इस वसी मुसलमान सल्तनत की हुदूद में बहुत से अव्वलीन पैगंबरों समेत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अजीज व अकारिब और साथियों के मुकाबिल मौजूद थे। उस वक्त उन्हें मिस्मार क्यों न किया गया? यहाँ तक कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद अपने दौरे खिलाफत में भी किसी मकबरे को मिस्मार करने का हुक्म नहीं दिया। ये खुली हकीकत है कि ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और ना ही चारों खुलफाए राशिदीन में से किसी ने मकबरे मिस्मार कराए। ये एक बड़ी सच्चाई है कि मुसलमान हुक्मरानों ने 1400 साल तक इन मकबरों की हिफाजत की। मदीना के उलमा ने भी 1400 साल तक अपनी मर्जी से ऐसा कोई फतवा ना दिया। शाह सऊद को मुकद्दस मज़ारों को मिस्मार करने के लिए बहाना चाहिए था ताकि वो एक बार फिर वही कर सके जो 150 साल पहले करबला और नजफ में बगैर किसी फतवे के हजरत अली अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मज़ारों के साथ किया गया था। अल्लाह जल्ल शानहू के हुक्म से मुसलमान हर साल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की जद्दोजहद की याद में हज करते हैं, तो फिर मज़ारों से कैसा खतरा? वो मज़ारों पर इबादत को बुत परस्ती और शिर्क करार देते हैं। दुनिया भर में कोई भी मुसलमान किसी पैगंबर या वली की परस्तिश नहीं करता और ना ही इन मज़ारों को किबला का एहतराम देता है। वो यहाँ दफन लोगों को महज अल्लाह के प्यारे और उसके करीब बुलंद पाया लोगों का दर्जा देते हैं। वो इन मज़ारों पर उन बुजुर्गों की नहीं अल्लाह की इबादत करते हैं और इस अमल को शिर्क करार देना बेमानी इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ ये नुक्ता भी अहम है कि सऊदी हुकूमत हज और उम्रे के वीजे बगैर फोटो के जारी नहीं करती और खवातीन तक इस शर्त से मुबर्रा नहीं। और तो और इनकी करेंसी नोटों पर भी शाह अब्दुल्ला की तस्वीर है। ये बात मेरी समझ से बालातर है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुद साख्ता कौल के एक हिस्से पर फौरी अमल किया गया जिससे दुनिया भर के हर फिरके के मुसलमानों की दिल आजारी हुई, लेकिन इसी बयान के दूसरे हिस्से पर अमल को इतना जरूरी ना समझा गया। सऊदियों ने मकाबिर मलिया मेट करने में तो बड़ी तेजी दिखाई, लेकिन तस्वीरों की अशात को जायज करार दे दिया। हम कुरान को मुनसिफ ठहराते हैं। कुरान पाक में इरशाद होता है, उन लोगों पर खुदा की लानत हो जो झूठ बोलते हैं। सूरह आले इमरान आयत 61। मस्जिद के अंदर जाने से पहले वो तमाम कागजात जिन पर कोई दुआ या कुरानी आयात लिखी हो बाहर ही छोड़ जाइएगा, वरना गार्ड आपको उठाकर बाहर फेंक देंगे और हो सकता है कि आप जख्मी भी हो जाएं। मैं ऐसे बहुत से मनासिर अपनी आंखों से देख चुका हूं, बल्कि 25 साल पहले जब मैं पहली बार यहां आया था तो अमली तजुर्बे से भी गुजरा था। मोबाइल फोन अलबत्ता आपकी बहुत मदद कर सकता है। बहुत सी एप्स सेल फोन पर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं जो आपको न सिर्फ जन्नतुल बकी का तफसीली नक्शा फराहम कर देंगी बल्कि ये मालूमात भी फराहम कर देंगी कि किस कब्र में कौन दफन है। यहाँ से आपको मुख्तलिफ कब्रों पर पढ़ी जाने वाली दुआओं की रहनुमाई भी मिल जाएगी। तस्वीरें लेते वक्त बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, खास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर। अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो पूरी तरह चौकन्ने रहिए और किसी गार्ड की नजर पड़ने का एहसास होते ही हुजूम में गायब हो जाइए। वैसे एक इंतहाई महफूज तरीका भी है, आप जन्नतुल बकी के इर्द गिर्द के किसी होटल में ऊपर की किसी मंजिल पर कमरा हासिल करें और अपने कमरे की खिड़की या होटल की छत से बासानी वीडियो बना लें। सकीफा को सकीफा बनी सईदा भी कहते हैं। ये एक छतदार इमारत है जो एक यहूदी कबीले बनी सईदा की मिल्कियत थी। यह कबीला मदीना में आबाद यहूदी कबीले बनु खजरज की एक शाख था। आजकल इस जगह पर एक पार्क कायम है। यह मकान बहुत बड़ी तारीखी अहमियत का हामिल है। यह मकान उस वक्त एक बैठक के तौर पर इस्तेमाल किया गया था
जब इस्लामी तारीख अपने इंतहाई अहम और नाजुक तरीन दौर से गुजर रही थी। जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई यानी 8 जून सन 632 ईस्वी को, इस दिन अंसार जो कि मदीना के मकामी मुसलमान थे सकीफा बनी सईदा में इकट्ठे हुए और मुस्तकबिल की मुसलमान क़यादत के बारे में बातचीत करने लगे। अंसार के दोनों बड़े कबाइल के सरकर्दा लोग यहाँ मौजूद थे, लेकिन महाजरीन का कोई नुमाइंदा मौजूद ना था, बल्कि उन्हें इस मीटिंग की इत्तला ही नहीं दी गई थी। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इस मामले की खबर हुई तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर रवाना हुए, जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी के पास मौजूद थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बाहर से ही हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी, या अबू बकर फौरन बाहर आए, एक निहायत जरूरी मामला दरपेश है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में पैगाम भिजवाया कि वो अभी एक बहुत जरूरी काम में मसरूफ है और इस वक्त नहीं आ सकते। हजरत उमर ने फिर पैगाम भेजा कि मामला नाजुक है और उनका फौरी आना बहुत जरूरी है। इस पर हजरत अबू बकर बाहर आ गए और हजरत उमर ने उन्हें खुफिया तौर पर अंसार की बैठक के बारे में बताया जो सकीफा बनु सईदा में हो रही थी। हजरत उमर ने हजरत अबू बकर से फौरन वहां चलने को कहा और ये दोनों असहाब सकीफा को चल पड़े। एक गर्मा गर्म बहस मुबाहिसे के बाद, जिसकी तफसीलात बहुत तकलीफ दे हैं, वहां मौजूद तमाम लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बैत कर ली, यानी उन्हें मुसलमानों का नया कायद मुंतखब कर लिया गया। इसे उमाइदीन की सियासी बसीरत और मामला फहमी कहिए या बदकिस्मती, इस मस्जिद के शुरका दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के मामले पर बहस कर रहे थे, जबकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकफीन और तदफीन का मरहला अभी बाकी था। इस बात में मुझे हरगिज़ कोई शुबा नहीं कि यह तारीख का एक तकलीफ दे दौरानिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसलामंद साथियों की तवज्जो जनाजे के इंतजाम के बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन के इंतखाब पर थी। अगले दिन मदीना की मुसलमान बिरादरी नमाज के लिए मस्जिद नबवी में जमा हुई तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू बकर के हक में तकरीर की और मुसलमानों से उनकी बैत करने को कहा और कसीर तादाद में मुसलमानों ने बैत कर दी। कुछ मुसलमान अलबत्ता ऐसे थे जिन्होंने इसको हजरत अली करमल्लाहु वजह के साथ ज्यादती समझा। उनका ख्याल था कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद हैं और हजरतुल विदा के एक हफ्ते बाद मक्का से वापसी पर खुम गदीर के मकाम पर उनकी क़यादत का ऐलान कर दिया गया था। हजरत अली खुद सारे मामले का खामोशी से जायजा ले रहे थे। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु सकीफा बनु सईदा में होने वाले मुबाहिसे से भी किसी हद तक बाखबर हो चुके थे। आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के खलीफा मुंतखब होने के फैसले की मुखालफत ना करने का फैसला किया ताकि मुसलमानों में इस नाजुक मरहले पर इंतशार ना पैदा हो। बदर का मकाम मदीना से 150 किलोमीटर और मक्का से 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस जगह की इस्लामी तारीख में निहायत नुमाया हैसियत है। हिजरत के 2 साल बाद 13 मार्च सन 624 ईस्वी को मंगल के दिन यहाँ कुफर और इस्लाम की पहली बड़ी लड़ाई लड़ी गई। इससे पहले सन 623 के आखिर और 624 के शुरू में मुसलमानों और मक्का वालों के दरमियान छोटी मोटी झड़पें होती रही थीं। ताहम दोनों हरीफों के दरमियान पहला बड़ा मार्का बदर के मकाम पर पेश आया। हिजरत के दूसरे साल रमजान के महीने के शुरू में अबू सुफियान एक बड़े तिजारती काफिले को लेकर शाम से मक्का पलट रहा था। काफिले के साथ 50 तीर अंदाजों पर मुश्तमिल मुहाफिज दस्ता भी था। ये सूरत हाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने के लिए एक खतरा महसूस हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिफाई हिकमत अमली तरतीब देकर इस खतरे से निमटने की तैयारी शुरू कर दी। मक्का वालों को इन तैयारों की इत्तला मिली तो उन्होंने अबू सुफियान की मदद के बहाने मदीने पर हमले का इरादा कर लिया और अबू जहल की क़यादत में 1000 का लश्कर मदीना की तरफ पेशकदमी करने लगा। इन हालात का इल्म जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 313 मुजाहिदीन के साथ मक्का से मदीना को रवाना हो गए। इन मुजाहिदीन में हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत अली, हजरत हमजा, हजरत जुबैर, हजरत अम्मार यासिर और हजरत अबू जर गफ्फारी शामिल थे। हजरत उस्मान अपनी बीमार अहलिया की तीमारदारी के लिए मदीना में ही रुके रहे। वो इस जंग में शरीक न थे। हजरत सलमान फारसी भी जंग में शरीक ना थे क्योंकि वो अब तक गुलाम थे। मुसलमानों की मुख्तसर फौज के पास सिर्फ 70 ऊंट और 2 घोड़े थे और जंगी सामान और हथियार भी वाफिर न थे, जबकि काफिरों की फौज के हमरा उससे कई गुना ज्यादा जानवर और हर किस्म का जंगी साजो सामान बहुत कसरत से था। अब एक तरफ अबू सुफियान एक और गैर मारूफ रास्ते से गुजरकर मक्का पहुंच गया और दूसरी तरफ ये दोनों लश्कर बदर के मकाम पर एक दूसरे के मुकाबले आ गए। मुसलमानों की फौज ने अपने खैमे बदर की पहाड़ी पर नस्ब किए, जबकि मक्का वालों का पड़ाव नशेब में वाक़े वसी मैदान में था।
रात के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पहाड़ी पर जा बजा अलाव रोशन किए गए। आमतौर पर 5 आदमियों के लिए एक अलाव रोशन किया जाता था, लेकिन इस मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जबरदस्त जंगी चाल चली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आदमी को अलग अलाव रोशन करने का हुक्म दिया और दुश्मन पर असल से 5 गुना बड़ी फौज की धाक बिठा दी। ये चाल, जिसे एंटी ब्लैक आउट का नाम दिया जा सकता है, अपनी तर्ज की मुनफरिद जंगी चाल थी और दुनिया की जंगी तारीख का ये पहला मौका था जब ये चाल चली गई और इंतहाई कामयाब रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरबी सलाहियतों का ये एक कामयाब इज़हार था। सुबह के वक्त फौजें आमने सामने सफ आरा हुई और जंग का ऐलान हुआ। जंग का आगाज अरब के कदीम रिवाज के मुताबिक इनफरादी जंग से हुआ। कुरैश ने अपने 3 नामवर जंगजू मैदान में उतारे। उनमें से एक अतबा इब्ने रबिया, अबू सुफियान का ससुर, अतबा का बेटा वलीद और अतबा ही का भाई शीबा शामिल थे। इनके मुकाबले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत हमजा और हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैदान में भेजा। दू बदू लड़ाई में हजरत अली ने वलीद को, हजरत हमजा ने अतबा को कत्ल कर दिया। हजरत उबैदा को शीबा ने शदीद जख्मी कर दिया। इसे हजरत अली और हजरत हमजा ने हलाक कर दिया। हजरत उबैदा की टांग कट कर जिस्म से अलग हो गई थी। जख्मों की ताब ना ला सके और जंग बदर के पहले शहीद करार पाए। इस तरह अफरादी मुकाबले में मुसलमान फतह याब हुए और आम जंग के लिए इनका हौसला बुलंद हो गया था। यह फौजी इस्तिलाह में यूं कहिए कि मोराल हाई हो गया था। दूसरी तरफ 3 बहादुर तरीन जंगजुओं के मारे जाने से कुरैश जंग की इब्तिदा में ही हौसले हार गए थे। नफ्सियाती शिकस्त ने उन्हें खौफजदा कर दिया और उनकी फौज ने पसपाई इख्तियार की। सिपहर से पहले जंग खत्म हो चुकी थी। मुसलमानों की मुट्ठी भर फौज ने मार का मार लिया था। इस जंग में 14 मुजाहिदीन शहीद हुए और 72 काफिर मारे गए। मुसलमानों ने 70 काफिरों को जंगी कैदी भी बना लिया। यहाँ एक गैर मारूफ सहाबी हजरत हारिस का जिक्र जरूर करना चाहिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। इस सच्चे मुसलमान और मुहिब्बे रसूल ने उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए 4 बेटे अल्लाह की राह में कुर्बान किए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वालों की तादाद महज मुट्ठी भर ही थी। जंग बदर में कामयाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुफार के खिलाफ जद्दोजहद में एक तारीखी मोड़ साबित हुई। मक्का वालों के अलावा इर्द गिर्द के दीगर कबाइल जो अब तक इस्लाम को महज एक इलाकाई कुव्वत और मुसलमानों को मखसूस मजहबी अकायद रखने वाले अफराद का एक मुख्तसर ग्रोह समझते थे, इसे एक ठोस और ताकतवर जमीनी हकीकत के तौर पर कबूल करने लगे और उसके पैगाम को एक रूहानी तहरीक, जिसे वाज़े तौर पर आसमानी ताकतों की हिमायत हासिल थी। ये जंग अबू सुफियान के लिए भी बहुत अहम बल्कि मुबारक साबित हुई। अमर इब्ने हाशिम और अबू जहल समेत कुरैश के कई सरकर्दा सरदार जंग में मारे गए और कुरैश की सरदारी अबू सुफियान को मिल गई। बदर की फतह ने मुसलमानों के ईमान को मजीद मजबूत किया और इस्लामी रियासत की बुनियाद को इस्तेहकाम बख्शा। बदर की शिकस्त कुरैश के लिए शर्मनाक थी। वो मुसलमानों से इसका बदला लेने के लिए बेचैन थे, लेकिन वो इसके लिए पूरी तैयारी करके ही मदीना पर हमला करना चाहते थे। अबू सुफियान की बीवी हिंद अपने बाप अतबा, भाई वलीद और चचा शीबा का बदला लेने के लिए भरपूर तैयारी कर रही थी। उसने अपने गुलाम वहशी को इस शर्त पर आजाद करने का वादा किया था कि वो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल कर दे। वो उसे अपनी निगरानी में तीरंदाजी की मशक करा रही थी। ठीक 1 साल बाद 11 मार्च सन 625 ईस्वी को कुरैश 3000 आदमियों की फौज लेकर मक्का से मदीना पर चढ़ाई के लिए रवाना हुए। हर तरह के जंगी साजो सामान से लैस इस फौज की क़यादत अबू सुफियान कर रहा था। ये लोग मुसलमानों से जंग बदर की शिकस्त का बदला लेने जा रहे थे। मक्की औरतें, जिनमें कुरैश के सरदार अबू सुफियान की बीवी हिंद बिन्ते अतबा भी शामिल थी, इस लश्कर के साथ थीं, ताकि जंगी गीत गाकर अपने सिपाहियों का हौसला बुलंद कर सकें। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादों और लश्कर की रवानगी की खबर मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तैयारी करके अपनी जंगी हिकमत अमली तय कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुसलमानों की फौज लेकर मदीना से रवाना हुए। दोनों फौजें कोहे ओहद के सामने वाक़े वादी में मद्दे मुकाबिल आईं। ये 23 मार्च सन 625 ईस्वी को हफ्ते का दिन था, जब ओहद की वादी में इस्लाम की दूसरी बड़ी जंग ओहद लड़ी गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो खामोशी से कुफ्फार की फौज का घेराव कर लें। अगले दिन सुबह सवेरे मुसलमान सिपाहियों ने गहराई में वाक़े पहाड़ी ढलानों पर पोजीशनें संभाली ही थी कि एक गैर मुतवक्का सूरत हाल सामने आई। खिजरज कबीले का सरदार अब्दुल्ला इब्ने अबी अपने 300 साथियों को लेकर अलग हो गया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़कर मदीना वापस चला गया। अब मुसलमानों की फौज की तादाद 700 रह गई, जो कि कोहे ओहद की पहाड़ी ढलानों पर तैनात थी। फौजियों का रुख मदीना की तरफ था और पुष्ट पर वाक़े कोहे ओहद
उनके लिए एक कुदरती मोर्चे का काम दे रहा था। मुसलमान कैंप के मगरबी जानिब एक पथरीली पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीर अंदाजों का एक दस्ता मुतय्यन कर दिया था, जो पुष्ट से होने वाले हमले की सूरत में फौज के दिफा का जिम्मेदार था। ये थी वो हिकमत अमली जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से कई गुना बड़ी फौज से मुकाबले के लिए तैयार की। तादाद में बहुत कम होने के बावजूद मुसलमानों ने पेशकदमी की और दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। पांव उखड़ते ही कुरैश हौसला हार गए और सारी मक्की फौज तितर बितर हो गई। मुसलमान मैदान मार चुके थे, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। फतह सिर्फ एक कदम के फासले पर थी जब कुछ सिपाहियों से एक बहुत बड़ी गलती सरजद हो गई। ये पहाड़ी दरे पर मुतय्यन तीर अंदाज थे जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत में इस जगह को ना छोड़ने का हुक्म दिया था, लेकिन वो इस हिदायत को भूलकर माले गनीमत जमा करने में मसरूफ हो गए। दर्रा खाली पाकर मक्की फौज के एक दस्ते को, जिसकी क़यादत खालिद बिन वलीद के पास थी, मुसलमान फौज पर पुष्ट से हमले का मौका मिल गया। अचानक हमले से मुसलमान सिपाहियों में अफरा तफरी फैल गई। कुरैश के बिखरे हुए सिपाही भी वापस आकर जंग में शरीक हो गए। बहुत से मुसलमान सिपाही शहीद हो गए, जिनमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शदीद जख्मी हो गए थे। इसके बावजूद मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। बहुत सी जगहों पर दू बदू लड़ाई भी हुई, लेकिन इस दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह फैल गई, जिसने मुसलमानों का हौसला तोड़ डाला और वो मैदान छोड़कर एक करीबी पहाड़ी पर जमा हो गए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की खबर आ गई और मुसलमान कुछ पुरसुकून हो गए। इस इत्तफाकी फतह ने कुफ्फार पर वहशत तारी कर दी। हिंद और उसके साथियों ने हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु और कई दूसरे मुसलमान शोहदा की मैयतों की बेहुरमती की। हिंद ने अपने बाप, भाई और चचा का बदला लेने की खातिर हजरत हमजा का जिगर निकालकर चबा लिया। हजरत हमजा समेत दीगर शोहदा के नाक और कान काट कर जेवर की तरह पांव में पहन लिए। मक्की फौज के सिपाही ओहद की दुश्वार गुजार ढलानों पर मुसलमानों का पीछा ना कर सके और लड़ाई बंद हो गई। अबू सुफियान ने कुरैश की फतह का ऐलान किया और मक्का रवाना हो गया। अगरचे मुसलमान ये जंग हार गए थे, लेकिन कुरैश भी मुकम्मल तौर पर कामयाब ना हुए थे। उनकी जीत महज वक्ती और महदूद जीत थी। उनका असल हदफ मुसलमानों के मरकज मदीना को तबाह करना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके साथियों समेत मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना था, और बिलाशुबा वो अपने इन अज़ाइम में नाकाम रहे थे। उन्होंने मुसलमानों का पीछा करने के बजाय पसपाई इख्तियार की थी। दूसरी तरफ इस जंग के नताइज से मुसलमानों और उनके मकासद को शदीद झटका लगा था। वो मक्का वालों को दूसरी बड़ी शिकस्त देने के बिल्कुल करीब थे, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को नजरअंदाज करने की वजह से वो जीती हुई जंग हार गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों ने जंग के दिन ओहद की पहाड़ी पर वाक़े एक गार के नीचे उस मकाम पर जहां पहाड़ शुरू होता है नमाज अदा की थी। आज इस जगह पर एक मस्जिद वाक़े है। अगरचे मस्जिद की इमारत इम्तिदाद ज़माना का शिकार हो चुकी है, लेकिन दीवारों और मेहराब के आसार बाकी हैं। मस्जिद के गिर्द चार दीवारी भी थी, लेकिन उसके कोई आसार बाकी नहीं रहे। ग़ज़वा बदर और ओहद के तजुर्बात से मुसलमान ठोस और अमली फौजी तरबियत हासिल कर चुके थे। वक्त के साथ साथ उनकी अस्करी कुव्वत में भी इजाफा हो रहा था। एक अहम वाक़े की वजह से मदीना की सियासी सूरत हाल भी तब्दील हो चुकी थी। मदीना के यहूदी कबीले बनु नादिर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की नापाक साजिश की थी, और इस तरह अमली तौर पर मुसलमानों के साथ किए गए मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए थे। इस पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मदीना बदर कर दिया था, और वो मदीने से बाहर खैबर के मुकाम पर आबाद हो गए थे। यहाँ उन्होंने इर्द गिर्द के मुशरिक कबाइल के साथ दिफाई मुआहदे कर लिए। कुरैश मक्का इनके सबसे बड़े और ताकतवर हलीफ थे। इन सब ग्रुपों का मुश्तरका बुनियादी मकसद इस्लाम की उभरती हुई ताकत को तोड़ना और मुसलमानों की सियासी कुव्वत को शिकस्त देना था। मुख्तलिफ ग्रोहों के इस इत्तेहाद का जिक्र कुरान पाक की सूरह अहज़ाब में आया है। इस सूरह मुबारका में इस गज़वा को अहज़ाब यानी मुत्तहिदा ग्रोहों की लड़ाई का नाम दिया गया है। तारीख में यह जंग ग़ज़वा खंदक और ग़ज़वा अहज़ाब दोनों नामों से मशहूर है। जनवरी सन 627 ईस्वी में उन सब कबीलों के सिपाहियों पर मुश्तमिल 10,000 का लश्कर अबू सुफियान की क़यादत में मदीने पर हमला आवर होने के इरादे से रवाना हुआ। कुरान पाक ने इस जंग को इस्लाम के खिलाफ कुफ्र और यहूद का इत्तेहाद करार दिया है। इसके मुकाबले में मुसलमान फौज सिर्फ 3,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी, और इसमें मदीना के 15 साल से ज्यादा उम्र की तमाम मर्दाना आबादी शामिल थी। जंग की हिकमत अमली तय करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से मशवरा किया और हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तजवीज़ को पसंद फरमाया। हजरत सलमान फारसी का ताल्लुक ईरान से था, जो उस जमाने में फारिस कहलाता था।
उन्होंने मदीना के शुमाल में एक खूब चौड़ी और गहरी खंदक खोदने की सलाह दी थी, जो कि ईरान या फारिस के लोगों की कदीम जंगी तकनीक थी, जबकि बाकी तीन अतराफ से मदीना पथरीले पहाड़ों और खजूर के बागात से घिरा हुआ था। 6 दिन तक मदीना का हर फर्द खंदक खोदने में मसरूफ रहा और आखिरकार शहर के दिफा के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी खंदक तैयार हो गई। आजकल ये खंदक मौजूद नहीं, लेकिन उस जगह की निशानदही मुख्तलिफ निशानात से कर दी गई है जहां कभी ये खंदक खोदी गई थी। ये एक कामयाब हरबा साबित हुआ। इससे पहले अरबों ने कभी भी जंग के मौके पर, बल्कि शायद किसी भी और मौके पर खंदक ना खोदी थी। इसका रिवाज ही ना था। वो तो बस घोड़े दौड़ाते हुए मैदान जंग में पहुंच जाते थे। वहां शमशीर जनी और तीर अंदाजी या कभी कभी पहलवानी के जौहर दिखाते। फतह की सूरत में जहां तक मुमकिन होता हरीफ का पीछा करते हुए माले गनीमत इकट्ठा करते, और शिकस्त की सूरत में काम आ गए तो खैर, वरना घोड़ों का रुख घर की जानिब करके एड़ लगा देते। बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। तो इस पस मंजर में कुरैश और यहूदियों के गुमान में भी ना था कि मुसलमान इस तरह इनको मदीना के बाहर महसूर कर देंगे। इत्तेहादियों की फौजी कयादत पेचो ताप खाकर रह गई। वो मदीना का घेराव किए हुए थे, लेकिन मदीना वाले महफूज थे। मुहासरा 4 हफ्ते तक जारी रहा, लेकिन हमलावर शहर में दाखिल ना हो सके। आखिर जिद होकर उन्होंने खंदक उबूर करके शहर में दाखिल होने का फैसला किया। मुसलमानों के लिए उनका यह इकदाम गैर मुतवक्का ना था और उन्होंने इस सूरत हाल से निपटने की तैयारी कर रखी थी। खंदक अबूर करने की कोशिश करने वालों पर तीरों और पत्थरों की बारिश कर दी गई। एक जोशीले जंगजू नौफिल इब्ने अब्दुल्ला ने घोड़े पर सवार खंदक के पार छलांग लगाने की कोशिश की और खंदक में जा गिरा। मुसलमान फौजियों की संगबारी की जद में आकर वो इस कदर निढाल हुआ कि खंदक से बाहर ना निकल सका। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खंदक में उतरकर उसे मौत की घाट उतार दिया। कुरैश के कुछ और सिपाहियों ने, जिनमें अम्र इब्ने अब्दवद, दोहरार इब्ने खत्ताब और अकरमा इब्ने अबू जहल शामिल थे, खंदक को एक ऐसे मुकाम से पार कर लिया जहां चौड़ाई कुछ कम थी। उन सिपाहियों ने सुला नामी पहाड़ी के करीब एक दलदली इलाके पर कब्जा कर लिया। अमर इब्ने अब्दवद ने मुसलमानों को कुश्ती के लिए ललकारा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसका चैलेंज कबूल किया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मैदान में उतरे। इब्तिदाई जोर आजमाई और दाव पेच के बाद मुकाबले में शिद्दत आ गई और दोनों हरीफ गर्द के बादल में गायब हो गए। और फिर एक फैसला कुन चीख बुलंद हुई, लेकिन ये वाज़ेह ना था कि ये किसकी आवाज है और फातेह कौन है। आखिरकार गर्द के बादल से अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की जीत का ऐलान थी। मुहासरा तवील होता जा रहा था और दोनों फरीकों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार न था। तवील मुहासरे ने मुसलमानों के लिए अच्छी खासी मुश्किलात पैदा कर दी थीं। खुराक के ज़खायर खत्म होने को थे और सर्दी बढ़ रही थी। खास तौर पर रात के वक्त उसकी शिद्दत में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता था। रातों को मुसलसल जागते रहने और चौकस रहकर खंदक का पहरा देते रहने से भी मुजाहिदीन के असाब दबाव का शिकार थे। दूसरी तरफ इत्तेहादियों का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ ना था। खाने पीने का सामान खत्म होने को था। घोड़े और ऊंट चारे की कमी के बायस मरने लगे थे। इस साल सर्दी गैर मामूली तौर पर ज्यादा पड़ी थी और हवा में नमी की वजह से उसकी शिद्दत और भी ज्यादा हो गई थी। मुहासरे की 27वीं रात थी जब सख्त चिड़चिड़ाहट और गू मगू की कैफियत में इत्तेहादी कबाइल ने पसपाई का फैसला किया और अपने खैमे उखाड़ लिए। वो वापस रवाना हो रहे थे। अगली सुबह मैदान खाली था। इस जंग में मुसलमानों का कोई जानी नुकसान ना हुआ और मुखालफीन के भी सिर्फ 3 आदमी मारे गए। मुसलमानों की दिफाई पॉलिसी मुकम्मल तौर पर कामयाब रही, जबकि कुफार और यहूदी कोई भी मकसद हासिल ना कर सके और खुली शिकस्त से दो चार हुए। इस जंग में एक और अहम मामला भी पेश आया था। मक्का में आबाद यहूदी कबीले बनु कुरैजा ने इत्तेहादियों के लिए जासूसी की थी और उसकी सजा के तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने उनकी बस्ती का मुहासरा कर लिया था। 25 दिन के मुहासरे के बाद बनु कुरैजा ने गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए और मुसलमानों ने मुहासरा खत्म कर दिया और यूं ये तारीखी जंग खत्म हुई। ये कदीम मस्जिद देखिए। ये खूबसूरत मस्जिद कोह सला पर उस जगह तामीर की गई है जहां से खालिद बिन वलीद खंदक अबूर करके मदीना में दाखिल हुआ था, जबकि मस्जिद सलमान फारसी मुनासिब देखभाल ना होने के बायस खंडर बन चुकी है। कभी किसी के हाथ से लिखा हुआ उनका नाम मस्जिद की दीवार पर मौजूद था, लेकिन आज उस शख्स का नाम तक मस्जिद से मिट चुका है जिसकी एक तजवीज की बदौलत मुसलमानों को एक अजीम और तारीखी फतह नसीब हुई। कुरैश मक्का ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना से बेदखल करने के लिए अपनी भरपूर ताकत आजमाई और तमाम तर वसाइल इस्तेमाल कर दिए, लेकिन अपना मकसद हासिल करने में वो नाकाम रहे। वो न सिर्फ जंग हार गए बल्कि उन्हें एक और बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा। वो मदीना से गुजरकर शाम जाने वाले तिजारती रास्ते से महरूम हो गए और यूं उस तिजारत से हाथ धो बैठे
جس کے ساتھ ان کا خاندانی اور معاشی وقار وابستہ تھا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد اسلام خطے میں مزید مضبوط اور پروقار حیثیت میں ابھرا۔ خیبر مدینہ کے نواح میں واقع ایک خوبصورت نخلستان ہے جو مدینہ سے 160 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ 7ویں صدی عیسوی میں مکہ سے شام جانے والی شاہراہ پر خیبر ایک اہم یہودی بستی تھی۔ لفظ خیبر کے لغوی معنی ہے قلعہ۔ اس علاقے کو خیبر کا نام اس لیے دیا گیا تھا کہ یہاں کئی ایک قلعے سلسلہ وار تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ قلعے تعداد میں 6 یا شاید 7 تھے۔ یہ نخلستانی علاقہ قدرتی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک حصہ النطاط تھا، دوسرے کا نام الشق تھا اور تیسرا حصہ القتبہ کہلاتا تھا۔ تینوں حصوں کی حدود کا تعین اس علاقے کے جغرافیائی خدوخال کرتے تھے۔ کہیں صحرا، کہیں زلزلے سے بننے والی دراڑیں اور کہیں کوئی دلدلی علاقہ ان تینوں حصوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا تھا۔ ہر حصے میں قلعوں کے علاوہ رہائشی مکانات، گودام اور استبل بھی واقع تھے۔ ہر قلعہ ایک الگ یہودی خاندان کی ملکیت تھا۔ قلعوں کے ارد گرد کھیت اور کھجور کے باغات تھے۔ ان قلعوں کی دفاعی اہمیت کے پیش نظر انہیں باسالٹ کی اونچی چٹانوں پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ جگہ خیبر کے عرب یہودیوں کا قبرستان ہے۔ اگرچہ یہاں کوئی کتبہ یا کسی قسم کی کوئی اور ایسی علامت نہیں پائی جاتی جس سے اس جگہ کے قبرستان ہونے کا ثبوت مل سکے، لیکن یہ جگہ تب سے یہودیوں کا قبرستان ہی کہلاتی ہے۔ یہودیوں نے اگرچہ مسلمانوں کے ساتھ امن و تعاون کا معاہدہ کر لیا تھا، لیکن وہ اکثر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر بدر کرنے کا فیصلہ کیا اور مسلمان فوج نے انہیں شہر سے باہر نکال دیا۔ اس وقت بنو قنیقہ اور بنو نادر کے اکثر یہودی خیبر کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ بنو نادر نے جنگ احزاب میں قریش مکہ اور ان کے اتحادی بدو قبائل کا کھلے بندوں ساتھ دیا اور انہیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسایا بلکہ ان کی مالی مدد بھی کی۔ انہوں نے بہت سے عرب قبائل کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کا معاوضہ بھی دیا۔ غرض کے خیبر یہودیوں نے غزوہ خندق یا احزاب میں قریش مکہ کی بھرپور مدد کی۔ مدینہ میں آباد یہودی قبیلے بنو قریظہ نے جنگ کے دوران قریش کے لیے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تھی، جس کی سزا کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مسلمان فوج نے ان کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا اور انہیں غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ اس وقت خیبر کے یہودیوں نے بنو قریظہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس شکست کا بدلہ لینے میں مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کریں گے، اور اس مقصد کے لیے وہ مدینہ پر ایک بڑے حملے کی تیاری کرنے میں لگ گئے۔ وہ قریش مکہ کے ساتھ جنگی تعاون کا ایک معاہدہ کرنے کی تیاری بھی کر رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب معاملات سے باخبر تھے۔ اسی دوران قریش مکہ اور مسلمانوں کے بیچ تاریخی صلح نامہ معاہدہ حدیبیہ طے پا گیا اور یہودیوں کے قریش کے ساتھ معاہدے کی امکانات ختم ہو گئے۔ اب یہودی سیاسی طور پر تنہا رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہودیوں پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت تھا۔ چنانچہ معاہدہ حدیبیہ طے کر کے مدینہ واپس پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ خیبر پر حملہ کر دیا۔ جب جنگ ناگزیر ہو گئی اور یہودیوں کو محسوس ہوا کہ وہ یہ جنگ تنہا نہیں لڑ سکتے، تو انہوں نے ایک قریبی نخلستان فدق میں آباد یہودیوں کو اپنا حلیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اتنی تیاری کافی ہے۔ مسلمانوں کی فوج مئی سن 628 عیسوی میں خیبر پر حملے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئی۔ سپاہیوں کی تعداد 1400 سے 1800 کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں مسلمان خواتین نے بھی شرکت کی تاکہ زخمیوں کی دیکھ بھال کی خدمت سر انجام دے سکیں۔ جنگ میں شریک خواتین میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھیں۔ خیبر کے دفاع کے لیے یہودیوں کی فوج میں 10,000 سپاہی تھے اور یہ مسلمان فوج کے مقابلے میں بہت بڑی تعداد تھی۔ اس مختصر تعداد کا مسلمانوں نے بڑے مختلف انداز میں فائدہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تمام مسلمان سپاہی نہایت سکون اور خاموشی سے صرف 3 دن میں خیبر کے علاقے میں داخل ہو گئے اور یہودیوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ایک خون ریز لڑائی کے بعد جو ایک قلعے کے سامنے ہوئی، یہودیوں نے دو بدو مقابلہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لڑائی کے دوران زیادہ تر متحارب فوجوں کے سپاہیوں نے وسیع فاصلے سے ایک دوسرے پر تیر برسائے۔ جنگ کے دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مسلمان ایک بھرپور یلغار کر کے قلعے میں داخل ہو سکتے تھے۔ ایسے میں یہودیوں نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عورتوں اور بچوں کو اس علاقے میں اپنے قیمتی ساز و سامان اور خزانوں کے ساتھ ایک دوسرے قلعے میں منتقل کر دیا تاکہ مکمل اور بھرپور مزاحمت کر سکیں۔ نہ تو یہودی اور نہ ہی مسلمان ایک طویل محاصرے کے لیے تیار تھے، اس لیے دونوں ہی فریق خوراک اور پانی کی کمی کا شکار ہو گئے، لیکن اس کے باوجود جنگ جاری رہی۔ النطاط اور الشق میں واقع قلعے آسانی سے فتح ہو گئے۔ اب اہم ترین قلعہ القموس باقی رہ گیا تھا۔
یہ ایک نہایت اہم قلعہ تھا جس کی حفاظت کے لیے یہودیوں نے نہایت سخت انتظامات کر رکھے تھے۔ اس قلعے کا محاصرہ 13 سے 19 دن تک جاری رہا۔ مسلمانوں نے اس قلعے میں داخل ہونے کی کئی کوششیں کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کی قسم کل میں جنگ کا پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلی صبح ہر ایک یہ جاننے کے لیے بے چین اور متجسس تھا کہ آج پرچم کس خوش نصیب کو ملتا ہے۔ ہر کوئی یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا۔ اس پر لوگوں کو کچھ حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت حضرت علی بیمار تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور اب تک ہونے والے کسی بھی حملے میں انہوں نے حصہ نہ لیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر حضرت علی آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں کی تکلیف شدید تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر مل دیا اور ان کی آنکھیں بالکل تندرست ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ان کے حوالے کیا اور وہ دشمن سے دو دو ہاتھ کرنے چل پڑے۔ اسی دوران یہودیوں نے تمام کنووں اور چشموں پر قبضہ کر لیا اور مسلمان پانی کی قلت کا شکار ہو گئے۔ اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے زمین کھودی اور اس جگہ سے چشمہ پھوٹ پڑا جو آج بھی جاری ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنے ہدف قلعہ القموس کا رخ کیا۔ قلعے کے دروازے پر ان کا آمنا سامنا یہودی سردار مرحب سے ہوا جو ایک نامی گرامی پہلوان بھی تھا اور تجربہ کار جنگجو بھی۔ دونوں سپاہی ایک دوسرے پر پل پڑے۔ حضرت علی نے مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ وہ اس کے آہنی خول کو کاٹتی ہوئی سر میں دھس کر جبڑوں تک اتر گئی۔ انفرادی مقابلے میں فتح کے بعد عام جنگ کا آغاز ہوا۔ حضرت علی ہر قدم پر قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہودیوں کے بہترین جنگجو اور سردار مارے گئے۔ یہودی سپاہیوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور قلعے کے دروازے بند کر لیے۔ جنگ کے دوران حضرت علی کی ذرا کھو گئی۔ کوئی متبادل نہ ملا تو آپ نے قلعے کے دروازے کو ہی ڈھال بنا لیا۔ جب یہودیوں کی مزاحمت ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے قلعے میں داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی دروازہ نیچے گرا دیا اور یوں قلعے اور زمین کے درمیان ایک پل سا بن گیا اور مسلمان بآسانی قلعے میں داخل ہو گئے۔ یہ دروازہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا اور جنگ کے آخری مرحلے پر مسلمان سپاہیوں کے قلعے میں داخلے کے لیے پل کا کام بھی کیا، اس قدر بھاری تھا کہ 8 آدمی اس دروازے کو اس کی چوبوں سے لگایا کرتے تھے۔ یہ رہا قلعے کا دروازہ۔ یہی وہ تاریخی دروازہ ہے جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ڈھال اور پل کے طور پر استعمال کیا۔ اسی دروازے سے مسلمان سپاہی تیزی سے بھاگتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ یہودیوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ان سے سختی سے نمٹا گیا، یعنی مقابلے کی کوشش کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر بہادری کے تاریخی جوہر دکھائے اور بڑی تعداد میں یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتارا۔ آخر یہودیوں کی مزاحمت دم توڑ گئی اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ خیبر فتح ہو چکا تھا۔ یہودی سردار فوری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ صلح کی شرائط طے کی جا سکیں۔ قبائل نے اپنی اپنی شرائط پر جنگ بندی پر آمادگی کا اظہار کیا۔ الوتی اور السلیلم قبائل نے اس شرط پر ہتھیار ڈالے کہ ان سے نرمی کا سلوک روا رکھا جائے گا اور ان کے لوگوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرائط مان لی اور ان قبائل کی کوئی جائیداد ضبط نہ کی گئی۔ اس کے بعد ابی الحقیق، الکتابہ اور الوتیح قبیلوں کے سردار صلح کے معاملات پر بات چیت کے لیے حاضر ہوئے۔ صلح کا جو معاہدہ طے پایا اس کی روح سے یہودیوں کو خیبر کا علاقہ خالی کرنا تھا اور اپنی ساری دولت سے مسلمانوں کے حق میں دستبردار ہونا تھا۔ ان شرائط پر مسلمانوں نے جنگ بندی پر آمادگی ظاہر کی اور یہودیوں کو جانی نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کیا۔ معاہدہ طے پا جانے کے بعد یہودیوں کے ایک اور وفد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ انہیں اسی نخلستان میں رہنے اور کاشتکاری کی اجازت دی جائے تو وہ آدھی زرعی پیداوار مسلمانوں کو دے دیا کریں گے۔ یہ شرط مان لی گئی اور یہودیوں سے خیبر کا علاقہ خالی نہ کرایا گیا۔ جنگ خیبر اسلامی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ ثابت ہوئی۔ اس جنگ کے دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمانوں کی حکومت مدینہ اور اس کے نواح تک ہی محدود نہ رہی بلکہ جزیرہ نماء عرب کے دوسرے حصوں تک پھیل گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے بڑے مخالف یہودی ان کے مطیع ہو گئے۔ معاہدہ حدیبیہ جس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے حق میں نہ تھیں اور اسی بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض انتہائی قریبی ساتھیوں نے بھی بعض شرائط سے اختلاف کیا تھا، اس معاہدے نے ہی فتح خیبر کی راہ ہموار کی۔ یہودیوں کا زور توڑ دینے کے بعد مسلمانوں کے لیے مکہ فتح کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔ فتح خیبر نے فتح مکہ کا راستہ صاف کر دیا تھا
یہ کامیابی مسلمانوں کی طویل معاشی خوشحالی کا آغاز بھی تھی۔ جب اس جنگ میں یہودیوں کے ہتھیار ڈالنے کی خبریں ان کے اتحادی فدق کے یہودیوں تک پہنچی تو انہوں نے بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ اہل فدق کے ساتھ بھی صلح کا معاہدہ کیا گیا، جس کی شرائط اہل خیبر کے ساتھ کیے گئے معاہدے سے ملتی جلتی تھیں۔ فدق کا علاقہ چونکہ لڑے بغیر ہی فتح ہو گیا تھا، اس لیے رواج کے مطابق وہاں موجود کھجور کے باغات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکیت ہو گئے۔ ان باغات کی آمدنی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال بھر اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے، اور اس کا حکم اللہ جل شانہ کی طرف سے آیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ الحشر کی آیت نمبر 7 کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کے اس حکم سے آگاہ کیا کہ اے نبی، ذو القربہ یعنی اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذو القربہ کی مزید وضاحت چاہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، فاطمہ، یہاں حقوق سے مراد فدق کے باغات تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو بلا کر فدق کا علاقہ انہیں تحفے میں دے دیا۔ اس واقعے کے 4 سال بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، اور بدقسمتی سے یہ باغات حضرت فاطمہ اور پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے درمیان ایک تاریخی تنازع کی وجہ بن گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ باغات بی بی فاطمہ کو دینے سے انکار کر دیا، اور جب انہوں نے اپنے حق میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا تو اسے بھی تسلیم نہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد ہی ان کی پیاری بیٹی اپنے وراثتی حق سے محروم کر دی گئیں۔ سعودی عرب کے دیگر تاریخی مقامات کی طرح یہاں بھی مجھے جلائے گئے کھجور کے درخت اور تباہ شدہ عمارتی ڈھانچے نظر آئے، کیونکہ یہ جگہ بھی خاص تاریخی اہمیت کی حامل ہے۔ کھجور کے جلے ہوئے درخت آپ کو میلوں دور سے ہی نظر آ جائیں گے۔ خیبر کا قلعہ البتہ بین الاقوامی ثقافتی اور تعمیری ورثے کے طور پر محفوظ ہے، اور یہودی وراثت کو نقصان پہنچنے سے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کو اشتعال بھی آ سکتا ہے۔ مدینہ کے ارد گرد بے شمار ریستوران موجود ہیں جہاں انواع و اقسام کے کھانے کسی بھی وقت آرڈر کیے جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی کے ارد گرد واقع ریستورانوں میں عام طور پر عرب کھانوں کے ساتھ ساتھ زیادہ تر پاکستانی کھانے بھی ملتے ہیں۔ مدینہ کے اس نواحی علاقے میں کئی مقدس تاریخی مقامات موجود ہیں، جن میں سے ایک مسجد غمامہ ہے۔ لفظ غمامہ کے معنی ہیں بادل۔ یہاں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے ادا کی جانے والی خاص نماز استسقاء ادا کی تھی۔ یہ مسجد نبوی سے پیدل فاصلے پر واقع ہے۔ اس مسجد کو مسجد عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کچھ صحابہ کرام نے یہاں عید کی نماز ادا کی تھی۔ یہ مسجد ابو بکر کہلاتی ہے۔ یہ اس مقام پر واقع ہے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہائشی مکان واقع تھا۔ یہ مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور مسجد غمامہ سے اس کا فاصلہ محض 40 گز ہے۔ مسجد علی بھی یہاں کا ایک اہم اور قابل دید مقام ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہتے بھی تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں جمعہ کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد نبوی کے پچھواڑے مسجد غمامہ کے قریب واقع ہے۔ یہ مسجد بلال کہلاتی ہے۔ مسجد نبوی سے ملحق یہ مسجد کھجوروں کی منڈی کے قریب واقع ہے۔ موقع ملے تو اس مسجد کی زیارت ضرور کریں اور نماز بھی ادا کریں۔ یہ دیکھیے، انتہائی تاریخی اہمیت کی حامل یہ مشہور مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے۔ اسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے قبلہ کی تبدیلی کا حکم نازل ہوا تھا۔ 15 رجب سن 2 ہجری کو پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ جل شانہ کا یہ حکم لے کر نازل ہوئے کہ اے نبی، اپنا رخ مسجد الحرام سے کعبہ کی طرف موڑ لیجئے۔ اسی وجہ سے اس مسجد کو مسجد قبلتین یعنی 2 قبلوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب واقع یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے۔ ایک مرتبہ قباء سے مدینہ منورہ واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو سلام بن اوف قبیلے کے علاقے میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر جمعہ کی نماز ادا کی تھی۔ بعد میں یہاں مسجد تعمیر کر دی گئی۔ یہ مسجد نبوی کے جنوب میں واقع ہے۔ اس جگہ پر کبھی مسجد زرار واقع تھی، جہاں اکٹھے ہو کر منافقین اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ اس مسجد کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اور یہ دیکھیے، اسلام کی اولین مسجد قباء۔
मक्का से मदीना हिजरत के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब वाक़े एक बस्ती में 3 दिन क़याम फरमाया था और इन्हीं दिनों में यह मस्जिद तामीर की थी। यह मस्जिद मस्जिद नबवी से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। इस मस्जिद में 2 रकत नमाज की अदायगी को बहुत ज्यादा सवाब का बाइस बताया जाता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु शादी के बाद पहले पहल इस इलाके के एक मकान में मुकीम हुए जो मस्जिद कुबा के मेहराब के सामने वाक़े था। खजूर के दरख्तों के करीब वाक़े ये घर अब मिस्मार कर दिया गया है। एक बार मदीना के लोगों को खुश्क साली का सामना था और मदीना के सिर्फ एक कुएं में पानी मौजूद था। इस कुएं का मालिक एक यहूदी था और वो लोगों को पानी महंगे दामों फरोख्त करता था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये कुआं खरीद कर वक्फ कर दिया ताकि शहर के गरीब लोग भी आसानी से पानी हासिल कर सकें। यह है वो कुआं जिसका पानी आज भी इर्द गिर्द की जमीनों को सैराब कर रहा है। इस इहाते में दिखाई देने वाला मलबा एक तारीखी मस्जिद का है। इस मस्जिद में एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को सूरज के पलट जाने की दुआ करने को कहा था ताकि असर की नमाज अदा की जा सके, जिसमें कुछ ताखीर हो गई थी। इसी वाक़े की निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद रद्दुश-शम्स कहा जाता है। अलगर्स नामी यह कुआं जो बनर अली भी कहलाता है, मस्जिद शजरा से ज्यादा दूर नहीं। एक मुहिम से वापसी पर जिसकी क़यादत हजरत अली कर रहे थे, फौज के पास पानी खत्म हो गया था। उस वक्त हजरत अली ने यह कुआं खोदा था जिससे आज भी पानी फराहम हो रहा है। यह कुआं भी अब बंद कर दिया गया है। कुएं के करीब हजरत सलमान फारसी का बाग वाक़े है। मस्जिद कुबा के कमोबेश 1 किलोमीटर शुमाल में वाक़े इस कुएं के मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाहिश जाहिर फरमाई थी कि वफात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जस्त को इस कुएं के पानी से गुस्ल दिया जाए। हजरत अली ने इस वसीयत की तामील में इसी कुएं से पानी निकालकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत को तदफीन से कबल आखिरी गुस्ल दिया था। ये भी एक कुएं के आसार हैं। बताया जाता है कि यहाँ वो कुआं वाक़े था जिससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मिलकर पानी निकाला करते थे। इस पानी से हजरत सलमान फारसी के खजूरों के बाग को सैराब किया जाता था। बाग हजरत सलमान फारसी की आजादी की कीमत के तौर पर उनके यहूदी मालिक को दिया गया था। इस बाग के पीछे बैतुल हुज़्न वाक़े है, यानी गम का घर। सानेहाए करबला के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इसी मकान में क़याम फरमाया था। ये सुरंग नुमा गहरा रास्ता देखिए, इसकी मिट्टी खाके शिफा कहलाती है। जंगे ओहद से लौटते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह से मिट्टी लेकर शदीद जख्मियों के जख्मों पर लगाई थी ताकि वो शिफायाब हों। ऐसा ही हुआ और यहाँ की मिट्टी खाके शिफा करार पाई। इस जगह पर ईसाई कबीले नजरा के आलिमों और अहले बैत के दरमियान मुबाहिला हुआ था। आजकल यहाँ एक मस्जिद वाक़े है जो मस्जिद जिबाह कहलाती है। मुबाहिले में 14 ईसाई आलिम शरीक हुए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहस करके इस्लाम की सच्चाई को परखना चाहते थे। मुबाहिला कई दिन तक चलता रहा। फरीकैन दलाइल पर दलाइल देते रहे, लेकिन बहस किसी अंजाम को ना पहुंच सकी। ईसाई अपने मौक़िफ़ पर अड़े रहे। इस मौके पर कुरान पाक की 3री सूरह की आयात नंबर 59, 60 और 61 नाजिल हुई। इस पर ईसाइयों ने मुबाहिला अगले दिन तक मौखर कर दिया। अगले दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिए हुए तशरीफ लाए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ रखी थी। साथ में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा थीं और सबसे आगे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। इन मुकद्दस हस्तियों को देखकर ईसाई वफ्द के अरकान मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। लॉर्ड पादरी अपने साथियों से मुखातिब होकर कहने लगा, खुदा की कसम, मैंने आज वो चेहरे देख लिए हैं जो अगर पहाड़ों को हिलाने की खातिर इबादत करें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं। ऐ मसीह के मानने वालों, अगर तुमने मोहम्मद के साथ या इन लोगों के साथ जिनको मोहम्मद अपने साथ लाए हैं कोई बहस की तो तुम्हारा नाम और निशान तक सफाए हस्ती से मिट जाएगा। उसके बाद उन्होंने मुबाहिले का इरादा तर्क कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरखास्त की कि उन्हें उनके दीन पर कायम रहने दिया जाए और जिजिया देने पर आमादगी जाहिर करके रुखसत हुए। कुरान पाक की नुमाइश एक ऐसी जगह है जो हर एक को जरूर देखनी चाहिए। हुकूमत ने यहाँ कुरान के नायाब नुस्खे नुमाइश के लिए रखे हैं। 1500 मुरब्बा मीटर पर मुहित इस नुमाइशगाह की तरतीब व तज़ीन निहायत मोहतात तरीके पर इस अंदाज में की गई है कि यहाँ आने वाले कुरान पाक की तारीख और अहमियत से मुकम्मल तौर पर आगाह हो जाएं। नुमाइश में कुरान पाक के मुतालिक एक दस्तावेजी फिल्म समेत मुकम्मल समी और बसरी मुआवनत मौजूद है जो इस मुकद्दस किताब के बुनियादी खदोखाल, तारीख, तफसीर और वजाहत और फर्द, खानदान और माशरे पर इसके असरात को समझने में मददगार होती है।
यहाँ आपको खाने काबा के 140 साल पुराने गिलाफ के एक टुकड़े की जियारत का मौका भी मिलेगा। वादी जिन मदीना से कोई 30 किलोमीटर जुनूब मगरिब में वाक़ है। बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ कुछ माफूकुल फितरत ताकतें गाड़ियों को ऊपर की सिमत में खींचती हैं, जबकि बहुत से और लोग ये समझते हैं कि इर्द गिर्द के इलाके में वाक़ पहाड़ों में कोई मकनातीसी कुव्वत पाई जाती है जो कि गाड़ियों को चढ़ाई पर आसानी से चलने में मदद देती है। हकीकत यह है कि यह महज एक सराब नसर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दुनिया में ऐसी 80 जगहें मौजूद हैं जहां गाड़ियां इस सूरत हाल की जद में आ जाती हैं। मैंने इस बारे में अपनी ओमान की वीडियो में तफसील से बात की है। यह मक्का और मदीना के दरमियान वाक़ तारीखी कुआं तुफला है। अरबी जबान में तुफला के माने थूकने के हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहिदा हुदैबिया तय करके मक्का से मदीना वापस आ रहे थे तो रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुश्क कुआं नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें थूक दिया और इसमें पानी जारी हो गया। यह जगह मक्का से 55 किलोमीटर शुमाल में वाक़ है और मदीना से 345 किलोमीटर जुनूब में। लेकिन ना तो यहाँ कोई पक्की सड़क है और ना ही रास्ते की रहनुमाई के लिए कोई अलामत या निशान। जद्दा वापस जाते हुए हमने एक बार फिर उम्रा की अदायगी का इरादा कर लिया। शराइत की रूह से हमें किसी मीकात पर रुकना था। इस बार हम जुल हलीफा मीकात पर रुके। यहाँ हमने गुस्ल करके एहराम बांधा और एक बार फिर मक्का की मुकद्दस सरजमीन की जानिब रवाना हो गए। एहराम पहने हुए मैं मदीना के बारे में सोच रहा था। तारीख इस शहर के गली कूचों में बिखरी पड़ी थी। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और खानदान ने जिंदगी गुजारी थी। मैं 20 साल पहले भी यहाँ आया था। उस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा मसाजिद और तारीखी मकामात मौजूद थे, लेकिन अब उनमें से बहुत से दिखाई नहीं देते थे। मरकजी अहमियत की हामिल बड़ी तारीखी इमारतें अलबत्ता मौजूद हैं। कोई नहीं बता सकता कि ढाई जाने वाली इमारतें किस किस जगह पाई जाती थीं। मैं बहुत दिल गिरफ्तार हो गया था, बहुत ज्यादा उदास। रास्ते में हमें बहुत सी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी नजर आईं। हमारे ड्राइवर ने भी गाड़ी एक तरफ लगा दी। यहां बहुत से अरब बंदर इधर उधर कूद फान रहे थे। लोग इन बंदरों को केले और दीगर फल वगैरह खिला रहे थे। किसी ऐसे इलाके में इतनी कसीर तादाद में बंदर मौजूद होना जहां सब्जा ना हो निहायत हैरान कुन था। ड्राइवर ने हमें बताया कि ये बंदर यहां से 15 से 20 किलोमीटर मगरिब में वाक़ पहाड़ों में रहते हैं। अंदाजा लगाएं किस तरह ये हैवान इस बंजर इलाके में रहते होंगे। खैर, हमने भी इन बेचारे लेकिन शरारती बंदरों को कुछ फल वगैरह खाने को दिए और अपने रास्ते पर हो लिए। अगर आप भी इस रास्ते से गुजरने का इरादा रखते हो तो मेरी एक बात जरूर याद रखिएगा। अगर आपने एहराम बांध रखा हो तो गाड़ी से मत उतरिएगा। ये नदीदे बंदर केलों की तलाश में आपके एहराम की चादर तक खींच लेंगे और आप भरे मजबे में